Hey tip everyone, how are you all? Welcome back to our YouTube channel in our journey of spreading knowledge. हमारा आज का टॉपिक विटामिन की नेक्स्ट टाइप वाटर सॉल्युबल विटामिन पे है. एज आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, जिसमें हमने पूरे फैट सॉल्युबल विटामिन को कवर किया था. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन आई विल रिकमेंड कि पहले जाके आप उस पार्ट को देखें, फिर आप इस पार्ट को देखें, तभी आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा. सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's move on to our topic, which is about water soluble vitamins. Water soluble vitamins consist of B complex and vitamin C. Water soluble vitamins बॉडी में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड जो अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो पाता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. इसीलिए डेली डाइट में इनका एक एडुकेट अमाउंट लेना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कुकिंग के दौरान भी लॉस्ट हो जाते हैं. सो दिस फैक्टर शुड बी कीपिंग इन माइंड while meeting their requirements. Firstly, we will talk about vitamin B complex. Vitamin B complex is a group of vitamins which consists of vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9 and vitamin B12. The first one whom we discuss is vitamin B1, which is chemically known as thiamine and is present in the form of thiamine hydrochloride. Some important sources are pulses, nuts, oil seeds, meat and green leafy vegetables. Indian dietary में इसका मेन सोर्स सीरियल्स है, बट सीरियल्स की पॉलिशिंग से रिफाइनिंग में इसका मैक्सिमम अमाउंट लॉस्ट होता है. द डेली रिक्वायरमेंट फॉर थायमीन इज 0.8 to 1 mg. Moreover, deficiency of thiamine results in beriberi. Beriberi एक स्किन कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन में स्पॉट्स पड़ जाते हैं. साथ ही साथ बेरीबेरी इम्यूनिटी पावर को भी कम करती है और इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है. फर्दर बेरीबेरी की वजह से सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनोमस नर्व्स डिजनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से पॉलीन्यूराइटिस होता है. Next water soluble vitamin of B complex is vitamin B2, which is chemically known as riboflavin and is more soluble than thiamine. Some important sources are milk and milk products like curd, butter and milk powder, and the daily requirement is 1.1 to 1.3 mg. As far as its deficiency is concerned, riboflavin की deficiency से eyes, स्किन एंड नर्व्स पे अफेक्ट पड़ता है, जिससे आइज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ब्राइट सनलाइट के कंटेक्ट में आते ही, एंड द कंडीशन इज नोन एज द फोटोफोबिया, जिसको हम फियर ऑफ लाइट कहते हैं. एंड ऑल्सो स्किन में क्रैक्स एंड ड्राइनेस हो जाती है, स्पेशली अराउंड माउथ, टंग एंड नोज. And the third B complex is vitamin B3, which is chemically known as niacin or nicotinic acid, and this is the one जिसको therapeutically preferred किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी side reactions नहीं होते हैं. And the some important sources from where we get niacin are flesh foods, pulses and groundnuts. Its daily requirement for an average adult is 6.6 mg per 1000 calories. टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शंस, ये एक कोएंजाइम की तरह काम करता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. ये साथ ही साथ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इसकी डेफिशिएंसी से एक स्किन कंडीशन होती है विच इज़ नोन एज पेलेग्रा. पेलेग्रा में स्किन सनलाइट के कंटेक्ट में आते ही रेड हो जाती है, एंड ऑल्सो देयर हैपन्स ए कंडीशन विच इज़ नोन एज ए डिमेंशिया. डिमेंशिया एक मेंटल डिसऑर्डर है. Moving on to next, vitamin B5, which is chemically known as pantothenic acid. Its important sources are yeast, green vegetables and cereals. An average adult needs 3 to 7 mg of pantothenic acid in his daily diet. Its functions, ये विटामिन कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है, एज वेल एज लिपिड्स और अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. एंड इफ डेफिशिएंसी हैपन्स, then deficiency results in muscle spasms, neuromuscular degeneration and insufficient production of adrenal steroid hormone. Next one, vitamin B6, chemical name pyridoxine, and important sources are tomatoes, yellow corn, whole grain products and spinach. Its daily recommendation is 1.2 to 1.4 mg, and the important function is it helps in production of circulating antibodies.
इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी रेयर है, बट इफ हैपन्स देन देयर आर द साइंस ऑफ डर्मेटाइटिस ऑफ आईज, नोज एंड माउथ. Moving on to next one, vitamin B7, chemically known as biotin, and is found in liver, egg yolk and yeast. Daily safe intake is 10 to 20 mg. Its important functions, ये स्किन एंड हेयर की शाइन एंड ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हेयर्स की ग्रेइंग से भी बचाता है. इफ डेफिशिएंसी हैपन्स देन दैट डेफिशिएंसी विल कॉज मेंटल डिप्रेशन, फटीग एंड नोजिया. One of the important vitamin of B complex is vitamin B9, which is chemically known as folic acid or folate. Some important sources where it is found are like fresh, green leafy vegetables, jaggery and yeast. And the daily recommendation is 200 mg. Talking about its deficiency, अगर deficiency हो जाए इसकी तो anemia होता है, which is megaloblastic anemia. और इसकी डेफिशिएंसी अगर कंसेप्शन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है तो उसकी वजह से स्पाइन बिफिडिया के होने की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. स्पाइन बिफिडिया को हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में रहेगी उसमें कवर करेंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, विटामिन B12. इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है एंड सम फूड्स वेयर इट इज प्रेजेंट आर मिल्क, एग्स, चीज एंड मीट. And the daily intake for an average adult is 1.5 microgram. Talking about its functions, ये सभी बॉडी सेल्स में कोएंजाइम की तरह काम करता है और डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड ऑल्सो नर्व्स के अराउंड माइलिन शीथ होती है उसकी मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है. एंड द डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन एनीमिया विच इज प्रेनेशियस एनीमिया एंड ऑल्सो साइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज लाइक मेमोरी लॉस, वीकनेस and ataxia. And the last but not the least water soluble vitamin is vitamin C, which is chemically known as ascorbic acid. It is mostly present in citrus fruits and also tomatoes and other green leafy vegetables. Daily requirement for vitamin C is 40 mg. Its important functions are, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है एंड ऑल्सो स्किन से फ्री रेडिकल की डैमेज से भी बचाता है एंड इट्स डेफिशिएंसी विल रिजल्ट इन पुअर वुंड हीलिंग, जॉइंट पेन एंड स्कर्वी which is bleeding in gums. Thanks for watching. I will catch you in my next video which will be about deficiency disorders. Till then, take care, stay safe and spread the knowledge.